آئیے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکاتے ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، آج رات میں دل سے تیرا شکر گزار ہوں تیری تمام برکتوں کے لیے، اور ساری باتوں سے بڑھ کے خداوند اس بات کے لیے کہ ہم جب یہاں پر موجود ہیں تو ہماری موجودگی سے زیادہ تو خود یہاں پر ہے۔ اور اے خداوند، ہم جانتے ہیں تیرے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے جو کچھ ہوتا ہے یقیناً اس میں تیری رضا اور مرضی شامل ہے۔ سو خداوند، آج رات ہم تیری وعدوں، تیرے عہدوں اور تیری باتوں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے دل سے اس بات کے لیے تیرے شکر گزار ہیں کہ سارے علاقے میں، ضیاء کالونی میں اور پورے شہر میں تو اپنی قدرت کو اپنے خادموں کے وسیلے ظاہر کر رہا ہے۔ اور آج رات بھی خداوند جب تو کلام کرے گا، میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ تیرا کلام ہم تمام کی روحانی آسودگی اور تازگی کا سبب ٹھہرے گا۔ خداوند، آج رات ہم سارے تیرے تابع ہیں، ہم تمام تیری آواز سنتے ہیں۔ خداوند، ایک بھی لفظ، ایک بھی بات کوئی ایسی ہمارے منہ سے نہ نکلے جو اپنی دانائی اور معرفت سے ہو، بلکہ فی الحقیقتاً تیرا کلام آج رات ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تو فرما اے باپ، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری آواز سنتے ہیں، یسوع مسیح کے قادر نام میں، آمین۔ سب مل کر کہیں گے آمین۔ آئیے میرے ساتھ بائبل میں سے ایک حوالہ نکالیے گا، پہلا تسالونیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں 2 آیات مبارک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لکھا ہے، او وہ ہماری خاطر اس لیے موا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں، سب مل کر اسی کے ساتھ کیا کریں؟ جیئیں۔ پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا کیا بنو؟ سیڑھی کھچو اور وٹے مارو، ایک دوسرے نو گلا سناؤ، ایک دوسرے دے بارے چ برا بھلا کہو۔ کہتا ہے کہ تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کی تعریف ہو اس بات کے لیے، ان بھائیوں ان بہنوں کے لیے جو ایک دوسرے کی ترقی میں، جو ایک دوسرے کی فلاح میں، جو ایک گرے ہوئے بھائی یا بہن کو اٹھانے میں اپنا تھوڑا یا زیادہ کردار سر انجام دیتا ہے۔ میں نے ایک دن آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، میں دعا کر رہا تھا، میں نے دعا کرتے کرتے اسی حوالے کے مد نظر خداوند سے باتیں کرنا شروع کی۔ خدا کہتا ہے، میں آج بھی انہیں دیکھ کر اشک بہاتا ہوں۔ یہ میرے دل میں خدا کی آواز تھی۔ میں آپ کو کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، یہ روحانی عالم میں خدا میرے دل سے کلام کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں آج بھی ان پر اشک بہاتا ہوں جو اپنے بھائیوں پر، جو اپنی بہنوں پر الزام لگاتا جب وہ گرا ہو، جب وہ پس ہو، جب وہ پسماندہ ہو، اسے نہ اٹھائے۔ افسوس اس کی خدمت، اس کی زندگی، اس کی ذات پر، افسوس اس پر جو گرے ہوئے کو نہ اٹھا پائے۔ اور کسی نے مجھ سے سوال کیا، بھائی کتنی دفعہ اٹھاؤں؟ ایتے بار بار ڈگ پیندا ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تیرے خلاف، کسے دے خلاف نہیں، اور بھائی تیرے خلاف بھی اگر وہ گناہ کرے، وہ 7 برے گر جائے تو اسے 70 دفعہ اٹھا، اسے بار بار ہاتھ دے، تو بار بار اس کے پاس جا، تو بار بار اس کی فکر کر، اسے اور ٹھٹھوں میں نہ اڑا، اسے اور زیادہ مایوس نہ کر۔ اے دانش پیٹر دے دل دی کڑیاں ہویاں گلا نہیں،
ਇਹ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ। ये खुदा के दिल की आवाज है। एक भाई को मैंने एक दिन कहा, मैं क्या मैनू लगता है तेरा वस नहीं चलता, तू जाके ओदे कार ओदी गर्दन ते छुरी रख के ओनू हलाल कर छड़े। और तू बाज ही नहीं आ रहा, तू गिरे हुए को और गिरा रहा है। मैं आपको सच बताऊं, आज कलीसियाओं के परवान ना चढ़ने की सबसे बड़ी वजह बैरूनी मसाइल नहीं, अंदरूनी मसाइल है। कलीसियाओं की तरक्की ना करने की वजह, कलीसियाओं के अंदर तादाद ना बढ़ने की वजह बैरूनी मसाइल नहीं, अंदरूनी मसाइल है। अंदरूनी भाइयों की आपसी मसाइल है। आइए मेरे साथ एक हवाले को निकालिएगा, मैं और आप मिलकर आज थोड़ा सीखेंगे। आप सारे खुदा के खादिम हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम तमाम की याद दहानी के लिए इन हवालों को भी पढ़ लें। अगर आपके पास बाइबल है तो पहला तवारीख उसका 28वां बाब मेरे साथ निकालिएगा। आपको मालूम है, मैं आपको सिखा नहीं रहा, लेकिन आपको मालूम है कि दाऊद बादशाह था और दाऊद नबी भी था, खुदा का बुलाया हुआ भी था, खुदा का चुना हुआ वसीला भी ठहरा। खुदा ने कहा सिर्फ तो ही नहीं बल्कि मैं तेरी नस्लों को भी बरकत दूंगा। आज कई सारे मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं जो खिदमत कर रही हैं, लेकिन कई दफा उन्हें ये महसूस, ये गुमान भी नहीं होता कि खुदा का हाथ उनकी जिंदगी पर से उठ गया है। चर्च चलते रहते हैं, कलीसियाएं बढ़ती भी रहती हैं, तादाद में लोग बढ़ते भी जाते हैं, कई दफा मौजज़े भी हो रहे होते हैं, लेकिन खुदा उनके साथ मौजूद नहीं होता। खुदा के बगैर, मैंने परसों ही कहीं पर बात कर रहा था, मैंने कहा आज मेरे जो बहुत सारे दुख हैं, उन दुखों में से एक बड़ा दुख ये है कि मेरे कई दोस्त हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि वो बगैर खुदा के खुदा का काम करते जा रहे हैं, बगैर खुदा के खुदा का काम करते जा रहे हैं। काम खुदा का है लेकिन बगैर खुदा के किए जा रहे हैं। आइए जरा निकालिएगा दूसरा तवारीख, प्रेज यू जीसस। पहला तवारीख 28वां बाब और उसकी तीसरी आयत मेरे साथ पढ़े। लिखा है, पर खुदा ने मुझसे कहा कि तू मेरे नाम के लिए घर नहीं बनाने पाएगा, घर नहीं बनाने पाएगा, जिसका मतलब यह है कि तू बनाना तो चाहता है, तू चाहता है कि तू पासबानी खिदमत करे, तू तेरे दिल के अंदर जज्बा है, मैं मान रहा हूं कि तेरे अंदर जज्बा है, तेरे अंदर एबिलिटी है, तू रूहानी आग से भरा हुआ जरूर है। जब तू खुदा का नाम सुनता है, जब तू अपनी कौम का नाम सुनता है, तो तेरे दिल के अंदर जज्बे उठते हैं। वो कहता है, पर खुदा ने मुझसे कहा कि तू मेरे नाम के लिए घर नहीं बनाने पाएगा, क्योंकि तू जंगी मर्द है। सारे मिलकर बोलेंगे, कौन सा मर्द है? जंगी मर्द है, लड़ाका है, और तू फटेबाज है, तू जंगी है, तेरे अंदर सबर नहीं है। तू ते उस बीबी नू नांदिया वेख लिया सी ते तेरी नीयत खराब हो गई। तूने खाली उस औरत ही को, उस लौंडी को ही नहीं अपना शिकार बनाया, बल्कि तूने उसके शौहर को कत्ल भी करवा दिया था। तेरे अंदर सब्र नहीं, तू बेसब्रा है, तू जंगी मर्द है, और तूने खून बहाया। क्या किया? आज कई सारे खून बहाई जा रहे ने, कलीसिया भी चलाई जा रहे ने।
खून बहाते जा रहे हैं ते कहंदे ने खून मैं केड़ा पिस्तौला लैके भाई हेनरी आया, मैं केड़ा बंदूका लैके बम लैके आया। ओ भाई जरा अपने भाई को घुमा के देख कि कितनी दफा तूने उसके पीठ पर चाकू घुसाए हुए हैं। जरा अपने भाई की कमीज उतार कर देख कि कितनी चोटें उसके पीछे लगी हुई है, कितने जख्म उसने तेरे नाम से खाए हुए हैं, तेरे सबब से खाए हुए हैं। तेरे हाथों को इब्लीस ने इस्तेमाल किया कि अपने भाई की कमर को नोचे। तू कह रहा है मैं खूनी नहीं। ओ भाई तू खूनी है, और खुदा के कलाम का असूल बता रहा हूं। ये खुदा के कलाम का असूल है, मेरे खानदान का नहीं। ना ते एक गल्ला मेरे प्यो पीटर साहब ने मैनू सिखाइया ते ना ही मेरे गिरजे दे पादरी ने सिखाइया। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ईमानदार ਹੈ ਵਾਂ, ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਵਾਂ। कहता है तू हैकल बनाना चाहता है, you have the capacity, you have the boldness, you have the call। अरे तू तो पहले से मसा किया गया है। क्या खुदा ने पादरी सैमसन साहब दाऊद को मसा नहीं किया था? खुदा ने दाऊद को मसा किया। सारे भरावां देखो जरा खुदा ने कैसा मसा किया उन्होंने। सारे खानदान दे भरावां एक पासे किया, बोला दिस लिटिल वन, ये जो छोटा है ये मुझे मेरे काम के लिए चाहिए। जाति जूलियत नु मारिया, कई सारी जंगा जीतियां। जाति जूलियत नु जदों मारन जा रहा है, वो मुझे वो डायलॉग दाऊद का हमेशा दिलेरी देता है। कहता है मैंने तो शेर को भी मारा है, मैंने जंगली रीछ को भी मारा है, ये जाति जूलियत भी मेरे सामने कोई ऐसा ही होगा। ऐसा बड़ा सूरमा मर्दे खुदा, बाइबल बार बार उसे कहती है। मसाशुदा खादम, मसाशुदा नबी, मसाशुदा बादशाह, तीनों कॉलिंग्स उसकी जिंदगी पर है, तीनों किस्म के मसा उसकी जिंदगी पर हैं। लेकिन जदों गल आई चर्च बनाने दी, जदों गल आई कलीसिया दी पासबानी करन दी, जदों गल आई खुदा दा कार बनाने दी, खुदा ने कहा तू ये कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मसला ओदे विच तेरा इलाका नहीं, मसला तेरा इलाका नहीं, ना ही मसला दूजी चर्चेस ने। कई दफा हम खिदमत करते हैं और या शायद जितने पीछे बैठे हुए हैं ईमानदार होते हुए ईमानदारी वाली जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जब थोड़ा बहुत मसला हो तो हम कहते हैं ए मेरी वजह तो नहीं, ए पादरी अफजल दी वजह तो है, ए पादरी फरमान दी वजह तो है, ए पादरी शवास दी वजह तो होया है। और सुन भाई, मसला दुनिया में नहीं, मसला तेरे अंदर है। खुदा ने कहा तू इसलिए नहीं बना पाएगा क्योंकि तू जंगी मर्द है। द प्रॉब्लम इज विद इन यू। तेरे साथ मसला है, तेरे किरदार में प्रॉब्लम है, तेरे रवैये, तेरे मिजाज में। आज एक बात को लेकर, किसी भी एक बात को लेकर लोग आपकी जिंदगी का मसला बना देते हैं। हर गल बंदा मचोर 50वां टप गया है, लेकिन जदों जमात आ जाए पूरा चर्च उन्हें वेख के हंसेगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने ऐसे 1, 2, 3 की जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया है। तसव्वुर करें कि क्या आपकी मसीही जिंदगी कामिल होती है? क्या आपका मसीही दीन और अकीदा कामिल वाकई होता है, या अपने दिल नूं एवें धोखा दिता, वतर लाया सारे ने अपने आप नूं, मैं पाक हूं, मैं साफ हूं, बाकी सारे गलत जे।
कहता है तू जंगी मर्द है, यू आर द प्रॉब्लम। लेकिन आगे भी पढ़े क्या लिखा है, उसे कहा तू तो नहीं बना पाएगा, लेकिन मैं तेरे बेटे के हाथों ये बनवा लूंगा, लेकिन तेरे बेटे के हाथों मैं ये करवा लूंगा। चौथी आयत, तो भी खुदावंद इस्राएल के खुदा ने मुझे मेरे बाप के सारे घराने में से क्या किया, चुन लिया। वो कहता है मैं चुना हुआ जरूर हूं कि मैं सदा इस्राएल का बादशाह रहूं। ए गल सुनो हुन मेरी ध्यान नाल, जे ते किसी को कोई खता हो जाए, जे ते खता हो जाए ते एदा मतलब ऐ नहीं कि मसा ओदी जिंदगी तो चुक लिया जाता है, तुसी ओनू किसी काम ते नहीं छड़ दे। वो कह रहा है ताकि मैं सदा फॉरएवर, सदा तक इस्राएल का बादशाह रहूं, हमेशा तक बादशाही मेरे पास से जाने वाली नहीं है। आगे क्या लिखा है, क्योंकि उसने यहूदा को पेशवा होने के लिए मुंतखब किया और यहूदा के घराने में से मेरे बाप के घराने को चुना और मेरे बाप के बेटों में से मुझे पसंद किया ताकि मुझे सारे इस्राएल का बादशाह बनाए। और अब वो कहता है कि मेरे सब बेटों में से, क्योंकि खुदावंद ने मुझे बहुत से बेटे दिए हैं, उसने मेरे बेटे सुलेमान को क्या कर लिया है, क्या कर लिया है। आओ जरा हुन सुलेमान दी स्टेटमेंट करिए, मेरे साथ आइएगा। पहला सलातीन 5वां बाब 11वीं आयत। तो मैं गला तुहानू सच कह रहा कि ए मेरे दिल दी कड़ी हुई एक कोई नहीं खालिस कलाम सुना रहा ते ना ही अपने तजर्बे तुहानू सुना रहा, क्योंकि कलीसियाओं का परवान चढ़ना बड़ा जरूरी है। आमीन। खुदा चाहता है कि कलीसियाएं परवान चढ़ें, खुदा चाहता है कि हमारी खिदमत बड़ी फलदार हो। चर्च खाली नंबर बढ़ाने का नाम नहीं, बल्कि लोगों को शागिर्द बनाने का नाम है। आइए जरा पढ़िए क्या लिखा है, पहली आयत से ही पढ़ते हैं। और सूर के बादशाह हिराम ने अपने खादमों को सुलेमान के पास भेजा, क्योंकि उसने सुना था कि उन्होंने उसे उसके बाप की जगह मसा करके बादशाह बनाया है, इसीलिए कि हिराम हमेशा दाऊद का दोस्त रहा था। और सुलेमान ने हिराम को कहला भेजा कि तू जानता है कि मेरा बाप दाऊद खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए घर, सारे बोलेंगे भाई, घर ना बना सका, क्योंकि उसके चौगिर्द हर तरफ लड़ाइयां होती रही। ऐ जरा मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, जदों कोई बुजुर्ग हो जाए, जदों कोई बंदा बुजुर्ग हो जाए ते जेड़े ओदे पीछे आंदे ने, मिसाल देने लगा हूं मैं, इस इलाके में पादरी अफजल को बड़े जमाने से देख रहा हूं। कहता है कि मेरे बाप के चौगिर्द, खुदा ने बाप को क्या कहा था, अभी पढ़ा है, उसे कहा तू क्या है, जंगी मर्द है। ओदे बाद आने वाला ऐ नहीं कह रहा कि मेरा बाप जंगी था। सुनिएगा बड़े ध्यान से, अपने बुजुर्गों या अपने से पहले खिदमत करने वाले लोगों की इज्जत बरकरार रखना, यह बाद में आने वालों की जिम्मेदारी होती है। आमीन। अब वो क्या रहा है, हिराम के बादशाह को जवाब यह दे रहा है कि खुदा ने तो उसको कहा था कि तू जंगी है। डायरेक्ट क्या, जिमें कोई मुंह ते चपेड़ नहीं मार देता। खुदा ने दाऊद को डायरेक्टली कहा कि तू जंगी है, लेकिन जब उसके बाद आने वाला बात करता है उसी जंगी के बारे में, तो ऐ नहीं कहता कि वो जंगी था, कह रहा है उसके इर्द गिर्द जंगे होती थी। ए पादरी कामरान साहब दी भी जिम्मेदारी बनती है कि जेड़े इन्हां तो पहला इत्थे काम करदे ने उन्हां दी कमाल इज्जत बरकरार रखन। आमीन। ए इन्हां दे बाद आने वालियां दी भी
बनती है कि भाई वो इनकी इज्जत को बरकरार रखे। मैं तो दसा कई दफा हम इस बात को यूं टाल मटोल में गवा बैठते हैं। भाई इज्जत देने वाला खुदा है, आमीन। इज्जत देने वाला कौन है? लेकिन तुहानू इस फ्रेम चो मैं कढ़ना चाहना कि खुदा इज्जत दे भी दे ते नाल दे इज्जत ना करन ते इज्जत नहीं बनदियां। खुदा इज्जत दे भी दे ते नाल दे, ओए ए दुनियावी गल जे, लेकिन सुन लो, वो कहता है अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ए अपने ही होंगे जे। बड़े बड़े बादशाहों की सल्तनतें उसके अपने घर वालों की वजह से गिरी हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा है। ना बना सका क्योंकि उसके चौगिर्द हर तरफ लड़ाइयां होती रही, जब तक कि वो खुदावन ने उन सब को उसके पांव के तलवों के नीचे ना कर दिया। और अब खुदावन मेरे खुदा ने मुझको हर तरफ क्या बख्शा है? सारे बोलेंगे भाई क्या बख्शा है? ए जोर दी बोलना है, क्या बख्शा है? अमन दिया है। एक कार में गया, दुआ करन लई बुलाया। उन्हां दी बुढ़ी मां उन्हें कार च लड़ाई पा के रखनी ते जदों माई नूं पुछना कि माई क्यों लड़नी है, वो कहंदी सी पुत्र मेरी तबीयत बड़ी खराब रहिंदी है। ए कई सारियां ने अपनी तबीयत नूं अपना बहाना बना के लड़ाई पाई रखते हैं। तबीयत खराब लड़ाई पाई रखो, तबीयत खराब लड़ाई पाई रखो। अब उसने क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात। कहता है कि मेरा बाप इसलिए हैकल नहीं बना सका क्योंकि उसके इर्द गिर्द फसादात बहुत थे, झगड़े बहुत थे, लड़ाइयां बहुत थी, खून रेजी बहुत थी, लोग एक दूसरे के मुखालिफ बहुत थे। इस सबब से हैकल तामीर नहीं हो सकी। लो भाई बनाओ गिरजे, बनाओ गिरजे। बाइबल कहती है कि गिरजे बनाने की इजाजतनामा आसमान पर से नहीं आ सकता। गिरजा बनाने का इजाजतनामा आसमान पर से नहीं आ सकता जब तक कि आपके इर्द गिर्द फसादात खत्म ना हो। जब तक आपके इर्द गिर्द फसादात खत्म ना हो। मैं पादरी साहब नु क्या इनॉग्रेशन करांगे, जरूर करांगे। सब तो पहला एजिया कॉलोनी दा हर एक चर्च दा पासबान इत्थे होए ना, तो हमने फसादी खिदमत की और ना ही आगे कभी करेंगे। अगर यहां पर चर्च बनाएंगे तब बनाएंगे जब यहां के सारे चर्च हमारी मदद करेंगे। करोगे? प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां मेरे भाइयों के लिए बजाएं। उससे कहा हैकल इसलिए तामीर नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर फसादात थे मेरे बाप के चौगिर्द। लेकिन अब क्या हुआ है? हालेलुया। कहता है अब यह हुआ है कि खुदा ने मेरी खिदमत के दौरान ऐसा रहम मुझ पर कर दिया कि कोई मेरा मुखालिफ नहीं, सारे मेरे भाई और दोस्त हैं। हालेलुया। सारे मेरे भाई और दोस्त हो गए हैं। अब कोई लड़ाई नहीं रही, अब कोई झगड़ा नहीं रहा, अब कोई किसी के पीछे बातें नहीं करता, अब कोई फसादी बातें नहीं होती, अब कोई जंगो जदल नहीं, अब कोई खून रेजी नहीं। इस सबब से आओ हम मिलकर खुदा का घर तामीर करें। हालेलुया। ओ भाई अगर कलीसिया कराची च परवान चढ़ानी है ना, तो हम सबको अमन कायम करना पड़ेगा। क्या कायम करना पड़ेगा? क्या हो? अमन हो, ताकि हम वाकई ही यहोवा खुदा का घर शहर में तामीर करें। आमीन। ए साडे जड़े निके निके गिरजे ने ना, साडे निके निके गिरजे, ए एक एक इट जे, ए की है? चलो इट नहीं समझ आती कराची वालियां नू, एक एक ब्लॉक है, एक एक ब्लॉक है।
ਇਹ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਫਲੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਤਲਾ ਛੱਤ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਿਰਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਫਲੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, एक बदन बना लांगे। ओ भाई, हम मसीह का एक बदन है। हमें उसने एक नाम से मसा किया, हम पर एक नाम की मोहर हुई है, एक बपतिस्मा है, एक खुदा है, एक रोल कुदस है, एक ही मकसद है और वो खुदा की बादशाहत की वसत है। आमीन। आइए जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं, जो हमारी खिदमत का मरकज है। हमारी खिदमत का मरकज सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। आमीन। और ना तो कोई मकसद है और ना तो कोई मोटिव है, ना तो दिल के अंदर कोई और बात है। मैनू कदी कोई आके दसदा फलाना इंज करदा जे, ओ भाई ओ करदा रहे। मैनू मेरी खिदमत नाल गर्ज, मैनू मेरे भरावां दी खिदमत नाल गर्ज है। असी मिल के खुदा दा काम करना है, असी बड़ा कुछ करना है। हमने खुदावंत के लिए ब्लॉक साथ लगाने हैं, रद्दे साथ रखने हैं, मेहनत साथ करनी है ताकि पूरे पाकिस्तान में एक मसीह का बदन हो। सब कहेंगे आमीन, मिलके कहेंगे आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और आज रात हम मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। लेट अस प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा की तमजीद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तूने मुझे नाम लेकर बुलाया। जितने ईमानदार भी पीछे बैठे हुए हैं शुक्रगुजारी करें। कलाम में लिखा है तुम कोई कौम ही नहीं थे, ना कोई तुम्हारा निस्ब नामा था। ये पता ही नहीं किथों आए, किदा प्यो केड़ा, किदी मां केड़ी। वो कहता है तुम बेबाप घूमते थे, मसीह खुदावंद ने तुम्हें अपना नाम बख्श दिया है, तुम्हें अपनी कौम बना लिया है। यू आर द एप्पल ऑफ गॉड्स आई। खुदा की आंख की पुतली तुम्हें बना दिया। ते ना समझ के तू कल्ले ही अख दी पुतली है, तेरे नाल बैठा होया भी खुदा दे ही अख दी पुतली है। पास्टर सैमसन, मैं भी ते तुसी भी, असी दोवें पुतलियां अख दियां खुदा दी। ते जे ते तुहानू मैं छेड़ा ते मैं जालम, ते जे मैनू तुसी छेड़ो ते तुसी जालम। आइए हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा। शादमान हो, दिल आपका खुशी से भर जाए। ओ इस कलील वक्त में खुदा ने आपको अपने काम के लिए बुलाया है, आपको कलीसिया का हिस्सा बनाया है, आपको अपना नाम दे दिया है। हालेलुया। आइए हम सारे अपने कदमों पे खड़े हों। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, आओ मिलकर शादमानी से खुदा की शुक्रगुजारी करें। आवाजों को बुलंद कीजिएगा और कहिएगा खुदावंद मैं इस फजल के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, मैं इस बड़े रहम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि दुनिया के इस कलील तरीन वक्त में तूने मुझे नाम देकर, नाम लेकर बुलाया, अपना नाम दे दिया, अपनी पहचान दे दी। ओ मैं कलीसिया में अपना किरदार सरंजाम दूंगा। कलीसियाएं, चर्चेस ये कोई मजाक, खेल फरेब नहीं, ये खुदा का दिल, खुदा की मर्जी, खुदा का मंसूबा इस दुनिया के लिए है। अबलीस के हथकंडों का जवाब अगर कुछ है तो वो चर्च है। अगर आज दुनिया के अंदर खोए हुए लोगों के सवालों का जवाब कुछ है तो वो चर्च है। अगरचे आज कोई गमज़दा हो, उसके रोगों को मिटाने के लिए कोई दर्सगाह है तो वो चर्च है, कोई आरामगाह है तो वो चर्च है। चर्च को इज्जत दें, चर्च की इज्जत को बढ़ाएं, चर्च को सर्व करें, खिदमत करें चर्च की और चर्च में। बाप आसमानी, आज रात हमारे दिल ए बाप आसमानी तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तमजीद, तेरी हमद से भरे हुए हैं खुदा, कि तूने हम तमाम को इस वक्त में नाम लेकर बुलाया और खुदावंद हम पर
अपने बेटे यसु के खून को ढेला और हमारे फानी बदनों की तकदीस की कि ये तेरे काम के लिए सर्फ और खर्च किए जाएं। हमारी रूहों पर तेरा मसा आ ठहरा, हमारी जानों को तूने अपनी निगाह में ले लिया, हमारे नाम तूने किताबे हयात में लिख दिए, हमें वो कलीसिया बना दिया जिस पर आलमे अरवा के दरवाजे गालब नहीं आते। अब खुदावंद हम तुझसे ये फजल मांगते हैं कि हमें यक दिल होकर इस खिते में, इस सूबे में, इस मुल्क में बादशाहत की वसत और कलीसिया की तरक्की, कलीसिया को परवान चढ़ाने के लिए फजल अनायत फरमा दे ऐ खुदा। हम तमाम को यक दिल, यक जहन, यक रूह कर दे। हम मुतलाशी हैं इस बात के कि हम में से कोई भी पीछे रहा हुआ मालूम ना हो, बल्कि हम में से हर एक मसीह खुदावन तेरे कद के अंदाजा तक पहुंचे। आज रात मैं अपने भाइयों के लिए, अपने हम खिदमत साथियों के लिए जो खुदावन मुझ अदना और तेरी खेती में जो सबसे छोटा बल्कि इनका नौकर है, मेरे साथ खड़े होते, मैं अपने भाइयों के लिए आज रात है खुदावन दिल से तेरे हजूर से बरकत की दुआ करता हूं। एक एक पर, पादरी अफजल भट्टी साहब पर, पादरी अफजल बशीर भट्टी साहब पर, भाई बाबर पर, पादरी फरमान पर, पादरी कामरान पर, भाई विलियम पर, जितने भाई बुजुर्ग यहां पर हैं, हम खिदमत साथियों को नाम बनाम ए बाप तेरे हजूर से इनके लिए बरकत चाहता हूं, इनके लिए मुहाफजत चाहता हूं, तेरी सलामती की निगाह इन पर और इनके घरानों पर चाहता हूं। ऐ खुदावन इनके चर्चेस फलों से लदे हों ऐ खुदा, रूहानी फल, मादी फल यीशु के नाम में बोतात के साथ हो ऐ खुदा। खुदावन हम तेरे कलाम पर ईमान रखते हैं और हम जानते हैं तेरे कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम कभी बेतासीर लौटता ही नहीं। मैं ये जानता हूं कि ये बहुत सर बुलंद होने को है, ये बहुत ज्यादा बुलंदियों को देखने को है। तेरा हाथ इन कलीसियाओं पर है खुदा, तेरा शुक्र हो। तेरे कलाम में तूने कहा कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम ऐसा करते भी हो। खुदावन इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है और मैं ये दुआ करता हूं कि इसके अजर में तू हमेशा इन पर अपने भलाई के चेहरे के नूर को जलवागर फरमाता रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन इस सारी जमात को, ग्रेस नेटवर्क चर्च, जिया कॉलोनी की तमाम कलीसिया को, भाइयों बहनों, खानदानों, बच्चों को मैं अभी से तेरे नाम से बरकत देता हूं। खुदावंद इस गिरजाघर में आने वाला बरकत पाए, इस गिरजाघर से जो बाहर निकले वो दुनिया के लिए बरकत का सबब ठहरे। खुदावंद आसमानी खुदा हर एक घर में तेरी रहम और फजल की गैर मामूली बारिश हो है खुदा, और यीशु के नाम में ये कलीसिया बढ़ती जाए, ये कलीसिया बढ़ती जाए, ये कलीसिया बढ़ती जाए यीशु के नाम में। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज रात तेरे कलाम का, तेरे यहां आने का, हम तमाम के दरमियान तेरी मौजूदगी का इज्जत और जलाल समेट कर तेरे खूबसूरत चरणों में रखते हैं यीशु के नाम में। सब कहेंगे आमीन, सब कहिएगा आमीन। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं जो यहां पर मौजूद है। हालेलुया।